Thank you. Very good evening, everyone. I'm Dr. Manisha Soni, your host for today evening. And today's session is something very, very special because we are commemorating Dr. Liaquat Namole's birthday, and which is tomorrow. But this session is like a small debt of gratitude to him, to say a thank you to him in a small way. So before we come to knowing about a little more about the session, let me take you through PHF. And PHF is nothing but Promise Learn Homeopathic Forum, which has been founded by our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. And it began with a vision to empower, all homeopaths to really remove the fear of, practicing homeopathy, and also to see that homeopathy spreads to the remotest part of India. What began with a small group on WhatsApp has now grown to one of the biggest platform of learning on Telegram, with almost more than 3,000 doctors who are joining on a daily basis. So friends, we see the results, but what goes behind it is nothing but the relentless efforts of Dr. Liaquat Namoli. Nothing comes without hard work, and it's only because of his consistent efforts, his way of really encouraging everyone. This is the only platform I have seen where even the the newcomers, and in fact everybody is given a chance to present their cases. So this is only because of his consistent vision that he wanted everyone to have that learning platform. So today's session about Guruji Ke Saath Guruvar is the 140th session on our part 2 series. And today, because it is his birthday, which is tomorrow, this session becomes more special. And we have our team of 3 strong speakers from Team PHF who would be sharing their cases on what women want as a mark of gratitude to him. So, just a small announcement that please do not log off after the session ends. We have some surprise lined up for you. So, let me take you to the first speaker. She is Dr. Padma Shri Vishwanath Shende, and she has a clinic in Mohol at District Solapur. She has completed her DHMS from Gandhinatha Homeopathic Medical College at Solapur. And she was earlier practicing allopathy, and but after meeting Dr. Liaquat, she has started attending his monthly seminars, and now she has transformed her complete practice. She is completely practicing total homeopathy with mind method since the last 8 to 9 years. So she's a living example of Liaquat sir's vision of seeing that everybody practices homeopathy, and she's also known as a kidney stone specialist in her area. So without wasting any more time, let's welcome Dr. Padma with a big round of applause. Welcome, Dr. Padma. Over to you. Welcome. Thank you. Thank you, Manisha. Thank you, sir. First of all, in advance, happy birthday. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतात तुम्हाला. Hello. Yeah, we can hear you. Thank you, Kali. Thank you. You go ahead with your lecture, Beta. Thank you. So, continuing the What Woman Want session, first of all, I would like to say some gratitude, और gratitude कहने से भी कह नहीं पा सकते हम एग्जैक्टली लेकिन सर ने जो हमें सिखाया है ना वो बहुत ही अच्छा है. स्टार्ट में माइंड मेथड सीखना बहुत ही हार्ड लगता था और समझ में भी नहीं आता था क्योंकि सिर्फ वर्जन से रूब्रिक्स निकाल कर हम मेडिसिन दे रहे हैं तो रिजल्ट 100% नहीं आते. तो जब सर ने ये एम्पैथी सिखाया और सिचुएशन और पर्सन को समझ के जब हम केस टैकल करेंगे ना तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं. सो very thank you so much sir for teaching us homeopathy in so much simple way and easy way, and not much wasting the time. I'm going to towards the study case. It is a case of a girl 18 years. ये जो लड़की है ये 12 पास हो चुकी थी और उसका उसे ना डी फार्म में एडमिशन लेना था. पर जब उसके फादर्स ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं ना
तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, तो वो सबमिट नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से उसको 1 ईयर ड्रॉप लेना पड़ा, और नेक्स्ट ईयर वो फिर बाद में नर्सिंग के लिए एडमिशन ले लिया। और नर्सिंग के लिए एडमिशन लेने के बाद भी 1 ईयर पूरा बहुत अच्छा गया, और सेकेंड ईयर में जब एडमिशन हुआ तो वहां से उसको कफ कोल्ड रिकरेंट था और अस्थमा का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। और इसकी फैमिली हिस्ट्री जो है, इसके मदर फादर और ग्रैंड मदर और एक एंगर सिस्टर है इसको। और इसकी मदर जो है वो भी अस्थमा की पेशेंट है, जिसका जो कंप्लेंट था वो, हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन से पूरा काम मेरे पास लेके आया था। तो कंप्लेंट्स कुछ ऐसे ही थे कि रिकरेंट कोल्ड एंड, और जब से वो सेकेंड ईयर में गई तब से उसको कंप्लेंट स्टार्ट हुए थे। और बाकी कुछ ऐसा खास नहीं था, और कभी कभी तो फीवर आ जाता था। तो मैंने पेशेंट को पूछा कि क्या तकलीफ है बोलो, तो उसने कहा खांसी और सर्दी बस, और एक स्माइल दिया अच्छा सा। तो मैंने पूछा और बताओ, तो उसने कुछ नहीं बोला, बस इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं। तो मैंने पूछा कि जब तकलीफ होती है तो क्या करते हो? तो बोली कुछ नहीं, आराम करते हैं। और बाकी कुछ भी उसको पूछा तो वो ज्यादा आंसर करने के लिए तैयार ही नहीं थी, और सिर्फ स्माइल देती थी, या फिर अपने ही लो टोन में कुछ तो बोल देती थी, जो मुझे भी नहीं समझ में आता था और उसकी माँ को भी समझ में नहीं आता था। तो फर्स्ट टाइम उसको मैंने मेडिसिन दिया, तो फॉलो आफ्टर 15 डेज बाद आई वो, फिर से उसको सर्दी खांसी होगी। और तो वो दूसरे गांव में रहती थी स्टडी के लिए, तो उसको जाना आना भी दूर था, डिस्टेंस ज्यादा था। तो सेकेंड टाइम उसके फादर आए थे उसके साथ में। तो फादर जो थे वो बोले कि उसको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो अच्छी दवा दे दो। तो फिर मैंने मेडिसिन चेंज करके उसको दूसरा मेडिसिन दे दिया। बट सेकेंड टाइम भी मैंने उसको बहुत बार पूछा कि क्या हुआ था सेकेंड ईयर जाने के बाद में। इवन आई आस्क्ड अबाउट एनी अफेयर्स और डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा कुछ हुआ था, लो ब्रेक वगैरह, ऐसा कुछ उसको भी नहीं, कुछ नहीं बोली। तो मैंने बोला क्या टेंशन कुछ तो होता है, उसकी वजह से तकलीफ होती है, उसके बगैर ऐसा कुछ होता नहीं। तो उसने बहुत बार पूछने के बाद सिर्फ रोने लगी, और बाद में उसने बोला कि सब लोग मुझे टोकते रहते, बोले। मैं बोली क्या बोलते हैं? तो उसने कहा कि जो घर पे माँ और फादर जो है उसके, या फिर उसके चाचा चाची और चाचा सभी लोग जो रहते हैं, वो सिर्फ मुझे ही डांटते रहते, तो वो पे खाना नहीं खाती, या फिर खुद की सेहत को ध्यान नहीं देती, सिर्फ पढ़ाई करती रहती है। और स्कूल से जो टीचर्स थे ना, वो उस पेरेंट्स को रेगुलरली कॉल करके बोलते थे कि तुम्हारी लड़की पढ़ाई तो करती है, लेकिन मैं जो मेस के जो गार्ड रहते ना वहाँ पे, उन्होंने उसको बोला था कि खाना बहुत कम खाती है। तो उसने उतना कहा, और फिर बाद में फिर से रोने लगी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो मुझ पे ये विश्वास नहीं रखते, और जो बाकी लोग बोलते हैं उसको सुन के मुझे ही डांटते रहते हैं। तो फिर मैंने उसको मेडिसिन दिया, और फिर वापस गई वो उसके बाद में। और 1 मंथ तक उसको कुछ तकलीफ नहीं था। फिर बाद में 1 मंथ के बाद सडनली उसके फादर जो है उसको कॉलेज से उसका अस्थमा का जो अटैक था वो बहुत सीवियर था, और उसको बोलने को भी नहीं, तकलीफ हो रही थी, बोलने को भी नहीं हो रहा था। तो फिर उसके फादर डायरेक्ट उसको घर घर को ले जाने के बगैर मेरे क्लिनिक में ही लेके आए थे। तो जब वो आई थी तो उसे कुछ पूछना बोले तो स्पाज्म बहुत था, बोल नहीं सकती थी। लेकिन फादर ने बताया कुछ नहीं। 2 दिन पहले वो घर आई थी, और घर आने के बाद में फिर से कॉलेज चली गई। और यहाँ से जाते वक्त उसको सर्दी था, और वहां जाने के बाद में दूसरे दिन में उसको अस्थमा का अटैक फिर से हो गया। और उसने वहां पे एलोपैथिक मेडिसिन भी लिया, फिर भी वो कम नहीं हुआ। के लिए वो जो टीचर थे उन्होंने उसे घर भेजा। तो मैंने पूछा यहाँ गांव को क्यों आई थी 2 दिन पहले? तो बोले कि उनकी जो मम्मी पापा है उसकी एनिवर्सरी थी, उसके लिए वो आई थी। फादर ने सिर्फ इतना ही बताया। मैंने फिर उसको मदर को पूछा,
फोन पर, तो वो मदर ने कहा कि उनकी एनिवर्सरी थी, और जो लड़की थी ना, उस वो फादर को बिना बताए सरप्राइज देने के लिए वो घर घर पे आई थी, सेलिब्रेशन करने के लिए। लेकिन फादर ने उसको उल्टा डांट दिया कि तू कॉलेज छोड़ के क्यों आई बोल के। तो उसके बाद में उसको सर्दी और एक तकलीफ स्टार्ट हुई थी। अभी जिस टाइम मैंने जो मेडिसिन दिया उससे उसका फीवर भी कम हो गया और कंप्लीट स्पाज्म भी कम हो गया। उसके बाद में अभी कुछ भी तकलीफ नहीं। दिस इज द केस। कोई कुछ बोलेगा या फिर मैं एनालिसिस बोल दूं? हेलो। हेलो। फिर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ मानसी, एनालिसिस बोल दूं? इसमें इस केस में लड़की को डोमिनेशन दिख रहा है फादर का। हम्म। हम्म। उसका सब लोग उसको बोल रहे हैं, उसकी वजह से उसका जी घुट रहा है। फादर का ओके। बोलना, घर वालों का बोलना उसको सहन नहीं हो रहा है। कुछ भी करने जा रही है तो उल्टी उसको ही डांट पड़ रही है। उसके ओके। करियर में भी उसको नीचे उसको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा। हम्म। उसका एडमिशन नहीं हुआ ना, डी फार्म में, ऐसे कुछ बोले ना आपने। हाँ, डी फार्म में नहीं हुआ और उसको नर्सिंग में एडमिशन लेना पड़ा। लिया, हाँ। उसने नेक्स्ट ईयर लिया नर्सिंग। हाँ, उसकी वजह से ये लग लेकिन रहा है फर्स्ट कि ईयर उसको कुछ तकलीफ नहीं थी। फर्स्ट ईयर पूरा आराम से पास आउट हो गई। अच्छा। सेकेंड ईयर में सेकंड। जाने के बाद ही उसको तकलीफ हुई। ओके ओके। इतना ही बोल रही थी। हाँ। हेलो। 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 गुड इवनिंग मैम। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग। हाँ। बोलिए। मैम ये एक सिंपल और अच्छी लड़की लग रही है। देर इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल रूब्रिक एज मम्मी को जो अस्थमा था वो आपसे ठीक हुआ था, तो ये भी आई है मम्मी का सुन के। सो वन रूब्रिक इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एंड आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, क्योंकि आपने काफी पूछा बट शी वॉज नॉट रेडी टू टॉक। सिक्रेटिव लग रही थी। डेल्यूजन क्रिटिसाइज शी इज, क्योंकि उसे लग रहा है कि सब उसे ही डांट रहे हैं। एंड सेंसिटिव टू रेप्रीमांड्स भी है, क्योंकि पिताजी ने टोक दिया कि छोड़ के क्यों आई कॉलेज एंड ऑल। और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में भी होगा ही, बिकॉज जो चाहिए था वो उसे डी फार्म का एडमिशन नहीं मिला बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग लाइक, अगर वो पेपर्स ठीक होते तो उसे मिल जाता था वहां पे एडमिशन। लेकिन उसने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया कि ठीक है नर्सिंग तो नर्सिंग, लेकिन वो कर रही है। सो मैम ये थोड़ा नाइट्रम्यूर एंड कार्सिनोसिन का ये लग रहा है, शेड नाइट्रम्यूर आ रहा है। थैंक यू मैम। ओके। तो जब हमें देना है तो क्या देना है दोनों में से? हेलो। हेलो मैम, कार्सिनोसिन देना है या नाइट्रोमोर देना है?
हेलो डॉक्टर चंद्रेश, योर माइक इज ऑन, यू वांट टू से समथिंग? डिस्क्लोज करून देतो ना. ओके. तो मैंने फर्स्ट टाइम उसको जब दिया था ना, तो फर्स्ट टाइम मैंने उसको ओपीएम दिया था. तो उसके बाद में उसको 1 मंथ तक पूरा कंप्लीट रिलीफ था. उसके बाद में फिर भी कंटिन्यू रिलैप्स होने के बाद में उसको होल हिस्ट्री कंसिडर करके फिर मैंने उसको कार्सिनोसिन ही दिया था. कॉन्ग्रेचुलेशन में, कार्सिनोसिन देने के बाद में उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई. यहाँ पे ना कंफ्यूजिंग ये था कि पेशेंट जब भी आती थी ना, तो जो हम उसको एक कार्ड देते ना, जो पेपर का नंबर लिखा रहता है, पेपर कार्ड, वो हर बार भूल के आती थी. और मेडिसिन भी जो उसको दिए रहते थे साथ में, वो बिल्कुल लेके नहीं जाती थी. कभी उसकी माँ देती थी या फिर उसके फादर उसको फोर्सफुली देते थे, तभी वो मेडिसिन देती थी. ये इसका हिस्ट्री था. तो मैं हर बार यहाँ पे कंफ्यूज होती कि ये इतनी फ्यूलियस क्यों बिहेव करती है. कार्सिनोसिन तो रेस्पॉन्सिबल रहती है ना. तो वहां पे मुझे बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था. तो फिर मैंने उसको बाद में स्ट्रैमोनियम भी दिया था सेकेंड टाइम पे, क्योंकि स्लीकिंग लिया उसको, जो कुछ भी पूछो कुछ बोलती ही नहीं. और एक बार मैंने उसको खुद हो के बताया कि तुझे कॉलेज पढ़ना है कि नहीं, और फिर तुझे ठीक होना है कि नहीं. नहीं, ठीक नहीं हुई तो फिर तो कॉलेज भी नहीं करेगा. और उसके फादर उसको हमेशा यही कहते थे कि अगर तुझे पढ़ना नहीं है तो बोल कि हाँ घर बैठ, लेकिन कॉलेज जाके बीमार गिरेगी और तरीका आएगी. क्योंकि वो जो फैमिली है उसकी, वो जो थोड़ा सा पुअर पुअर फैमिली था. वो आयरलैंड का उनका बिजनेस है. तो इतना भी पूछने के बाद भी वो सिर्फ चुप ही बैठती थी, कुछ आंसर ही नहीं देती. और जब लास्ट, हेलो हेलो, जब लास्ट टाइम उसके माँ ने हिस्ट्री बताया ना, कि जो 2 दिन पहले जब वो लड़की आई थी सरप्राइज देने के लिए, वो आई थी मदर और फादर को फर्स्ट टाइम. वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए केक लेके आई थी, और उसके फादर ने उस दिन केक कट नहीं किया, वैसे ही रखा. फिर दूसरे दिन में दूसरे दिन मदर खुद होके कट करके सबको खाने के दिया. तो फिर वो वहां पे कुछ भी नहीं बोली फादर को, सिर्फ चुप बैठी. और दूसरे दिन कॉलेज को गई, तो फिर उसके बाद में उसको कंप्लेंट स्टार्ट हुई. तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रिवलेस जो नेचर था उसका, बिकॉज सी 18 ईयर्स की है लेकिन उतना सीरियस नहीं थी. बिकॉज ऑफ शी कैन मैनेज ऑल्सो. हाई स्पिरिट होते हैं, उनको इतना तकलीफ महसूस भी नहीं होती. और हर बार उसकी माँ लेके आती थी, क्योंकि मदर को मालूम था अस्थमा की कंप्लेंट से क्या तकलीफ होती है. और वो 2 ही लड़कियां हैं उनको, तो वो बहुत केयरफुल थी मेरी. तो वो कुछ बोलती भी नहीं थी और सीरियसली नहीं देख रही थी. तो मुझे बहुत वो स्ट्रीकिंग ज्यादा लगा था. इसके लिए मैंने उसको स्टैमोनियम भी दिया. फिर बाद में जब आया तो यहाँ पे जो ना क्रिटिसिज्म से भी ज्यादा था उसको तकलीफ किससे थी, कि जो ये घर वाले जो है ना, जो मुझे ही उल्टा बोलते हैं. मैं बोलती हूँ उनको, मैं सब खाना खाती हूँ टाइम पे, सब करती हूँ, फिर भी तकलीफ होती है. तो वो सुनते नहीं है, और जो दूसरे बोलते हैं वो सुन के मुझे डांटते हैं. यहाँ पे मैंने उसके लिए एडमोनिशन एग्रीवेशन लिया था. और स्टार्ट में हम देखे सर की हिसाब से, लियाकत सर के हिसाब से, एक केस जो है ना विद इन फर्स्ट विजिट में ही सॉल्व होनी चाहिए थी. मुझसे भी नहीं हुई, यही मैं बताना चाहती थी. क्योंकि जो फर्स्ट टाइम विजिट में आया पेशेंट आई थी, तो उसने बोला कि सर्दी खांसी बस, इतना ही बोला था उसने. यहाँ पे एग्जैक्टिव रूब्रिक मैंने मिस किया था. फर्स्ट टाइम विजिट में हम बहुत बार सवाल पूछते रहते हैं, और जो स्टार्ट इनिशियल जो 10 मिनट्स रहते हैं वहाँ पे बहुत कॉन्सेंट्रेशन देके नहीं कर पाते, कभी कभी होता नहीं है ऐसा. तो ये एग्जैक्टिंग रुब्रिक लिया और एडमिशन एग्रेवेशन लिया और आंसरिंग एवर टू आंसर, ये सब रुब्रिक लिया तो भी कार्सिनोसिन हम फर्स्ट टाइम दे सकते थे, लेकिन वो मिस हो गया. तो ये खूबी है लियाकत सर की. और ये जो सर बताते हैं उनका एक्सपीरियंस और उनका ऑब्जर्वेशन जो है ना, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, उसको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, तोड़ ही नहीं है. और सर है, हम सब लोगों को ये रेडीमेड देते हैं, और हम उसे बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं. और ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, कितना इतना जो इनका एक्सपीरियंस है वो हमें
सीधी सीधी बातों में बोल देते हैं और विदाउट एनी हेजिटेशन, और ऐसा कुछ ही नहीं रहता कि तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हें नहीं बताना चाहिए। So once again, thank you very much, sir, and gratitude from heart. Thank you. Manisha ma'am. Hello. Good evening to all the delegates attending this birthday celebration of our beloved Guruji, Dr. Yakat sir. I'm Dr. Sangeeta Kriya from Moral Gujarat, and I'll be your host for the remaining part of this wonderful session. On behalf of everyone attending this session, sir, a very happy advanced birthday wishes to you. And now, without further ado, let us move on to introducing today's second speaker, Dr. Manjari Dalvi Pahare. Ma'am graduated from Motiwala Homeopathic Medical College and has an impressive 20 years of clinical experience. She began practicing the mind method after coming in contact with her beloved Dr. Yasir sir about 2 years ago, and since then she has been actively exploring and teaching this beautiful art. Ma'am is known to be a wonderful teacher, and I'm sure her session today will be nothing less than a brain teaser for all of us. So with great pleasure, I welcome you, ma'am, and the stage is yours. Please begin. मंजू म्यूट है। थैंक यू संगीता मैम। देख लो कर ले। हाँ जरा सर काय बोलताय का? नहीं नहीं बोल। ठीक आहे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा सर इन ॲडव्हान्स. And thank you PHF team for giving me opportunity to present case in at इतने अच्छे दिन पे केस प्रेजेंट करने के लिए देने के लिए धन्यवाद। मेरी केस एक 14 साल की बेटी की है जो स्किन कंप्लेंट्स के लिए मेरे पास आई थी। पहले जब आई तब कुछ यानी समझा नहीं, उनके कंप्लेंट्स ही मुझे समझे नहीं और उनका कुछ मेडिसिन भी समझे नहीं क्या। तो मैंने फर्स्ट बार SL देके उनको भेज दिया और उनको 7 दिन के बाद फिर से बुलाया। जब 7 दिन के बाद वो बेटी अपने पापा मम्मी के साथ आई तो फिर मैंने पूछा कि कैसी है आपकी बेटी, उसके बारे में कुछ बताइए, उसके नेचर के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि क्या मैडम, ये हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है, मम्मी ये दुख रहा है, मम्मी यहाँ खुजा रहा है, मम्मी देखो ना इसने मारा। तो मैंने वो रूब्रिक लिया फिर एक, और जब मैंने उनको ये पूछा कि क्या क्या अच्छा लगता है आपको, क्या पसंद है, तो बोले मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। तो उसकी मम्मी बोली कि चॉकलेट्स, उसके सामने आप एक ये रख दो, बोतल जार रख दो चॉकलेट का, वो पूरा दोनों हाथों से ले लेगी और छुपा देगी, किसी को देगी नहीं। और मैं फिर बोली कि और कैसा बिहेव कैसे करती है, घर में खेलती है तब कैसे करती है। तो बोले कि मैम खेलती तो है सबके साथ, पर ये तोड़ेगी वो तोड़ेगी, दूसरों का खिलौना लाएगी वो भी तोड़ेगी, उसका खेलने से ज्यादा तोड़फोड़ ही ज्यादा चलती रहती है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर सोती कैसा है, सर का हमेशा का क्वेश्चन रहता है स्लीप पोजीशन, और स्लीप के इससे सर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि स्लीप कैसी है। तो मैंने उनको पूछा कि बच्चे की स्लीप कैसी है, तो वो बोले कि वो पेट के बल सोता है, और जब सोता है तब वो दांत घिसता है, ग्राइंडिंग करता है वो लड़की। तो ये सब रूब्रिक और देखिए मेरी एक मेडिसिन आई, मैंने दी तो उसके स्किन जो कंप्लेंट्स जिसके लिए वो आई थी वो 2-3 दिन में ही कम हो गए, और 10 दिनों के बाद तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उसके बाकी के भी कंप्लेंट्स थी, यानी उसको बार बार सर्दी खांसी होती थी और टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम थे, टॉन्सिलाइटिस होता था, वो भी उसका कम हो गया है। और अभी वो रेगुलर आते हैं उसके ये करने के लिए, सर्दी खांसी कुछ भी हुई तो वो फिर यहीं पे आते हैं। ये केस है बस। कोई एनालिसिस करेगा?
उनको ड्रेसिंग के बारे में भी पूछा था, कैसे रहना पसंद है, स्कूल जाना पसंद है नहीं है। तो मम्मी बोली कि ड्रेसिंग तो उसको हमेशा अच्छे ही कपड़े पहनना है, नए नए कपड़े निकालती है और नए नए कपड़े ही पहनना रहता है उसको, मुझे छुपा के रखना पड़ता है कपड़े उसके नए। समझी ना केस की कुछ और रिपीट करूं? फास्ट हो गया? रिपीट करो। रिपीट करूं? मम्मी के फर्स्ट टाइम पापा के साथ आई, तो उन्होंने ऐसे चीफ कंप्लेंट्स ऐसे बता दिए, तो वो तो कुछ समझे नहीं। नेक्स्ट टाइम मम्मी के साथ आई, तो मैंने मम्मी को पूछा कि कैसी है ये, इसके नेचर के बारे में बताइए। तो बोली कि हमेशा कंप्लेंट करती रहती है, मम्मी ये दुखता है, मम्मी वो दुखता है, थोड़ा सा खेलने जाएगी तो सबके साथ झगड़ा करके आएगी। बोले कि इसने मारा उसने मारा, ऐसी है। तो मैं बोली खेलती कैसा है? तो खेल तो सबके साथ खेल लेती है, पर उनके खिलौने लाके तोड़ती है, खुद के भी तोड़ती है, तो कोई बच्चा इसको खिलौने देता ही नहीं है। तो मैं बोला अच्छा, और बताइए। तो अ, मैंने उसको पूछा कि आपको क्या पसंद है, तो वो बोली कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है। तो मम्मी बोली इसके चॉकलेट तो उसके सामने जार रख दो, तो दोनों मुट्ठी भर के लेगी, छुपा देगी। इतना उसको सब चाहिए, जो भी उसको पसंद है वो यानी बहुत सारा लेके रख देगी, ऐसा उसका नेचर है बोली। तो फिर मैंने पूछा कि स्लिप सोती कैसा है? तो पेट के बल सोती है, और दांत रात को दांत घिसती है, ग्राइंडिंग करती है, और हमेशा उसको सर्दी खांसी और टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती है। ट्यूबरकुलिनम लिखा है किसी ने। हाँ, बराबर है सर, ट्यूबरकुलिनम ही है। और ये ऑब्जर्वेशन मैंने पहले नहीं बताया था, पर जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि इन रूब्रिक लेना चाहिए, तो उसके उससे मेरी एंट्री हुई इरेगुलर टीथ। और फिर मैंने बाकी के ये जो ये है उनको पूछे, उनके नेचर के बारे में, उनके सोने के बारे में, और फिर ट्यूबरकुलिनम कंफर्म किया। और किसी को कुछ बोलना है? ट्यूबरकुलिनम 30 के 3 डोज दिए थे, और उनके स्किन कंप्लेंट्स भी कम हो गए। फर्स्ट रूब्रिक जो है, मेरे रूब्रिक्स में आपको बता देती हूँ कि एंट्री पॉइंट है टीथ इरेगुलर, माउथ में है टीथ इरेगुलर, उसमें ट्यूबरकुलिनम है, फॉस्फोरस है, और 2-3 मेडिसिन है। और फिर बच्चे के नेचर के बारे में, कंप्लेनिंग ट्रिफल्स ऑफ हर चीज के बारे में। एक मिनट, यही है सर, रूब्रिक्स ही यही है, टीथ इरेगुलर। और चॉकलेट डिजायर वो तो है, पर वो जो चीज उसको अच्छी लगती है वो बहुत सारा लेके रखती है। तो मैंने डिजायर फुल ऑफ रिफ्यूज्ड व्हेन, नहीं, डिजायर फुल ऑफ डिजायर्स लिया लिया था। और खिलौने तोड़ती है, उसके लिए ब्रेक थिंग्स डिजायर टू।
उसको अच्छे ही कपड़े पहनने हैं, तो ड्रेसेस बेस्ट, स्लीप पोजीशन एब्डोमेन ऑन, और ग्राइंडिंग स्लीप ड्यूरिंग टीथ। ये रूब्रिक्स लेके मैंने ट्यूबरकुलिनम दिया था। शेप सर, अलाइनमेंट इरेगुलर। कंप्लीट में है, कंप्लीट रेपर्टरी में रूब्रिक है। और किसी को कोई डाउट है आंसर पूछने से? और कोई डॉक मैम कुछ डाउट है? डीडी पूछ रहे हैं, फॉस्फोरस और कार्सिनोसिन आ रहे हैं। डीडी का तो मैंने किया नहीं है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी डिफरेंशिएशन। Thank you so much, ma'am. That was an amazing session. Let's keep things moving. It is my pleasure to introduce our next speaker, Dr. Mansi Patil. She has completed her BHMS from Srimati Renuka Yashwantara Chavan Homeopathic Medical College, Kolhapur in 2003 and brings with her around 20 years of experience. She has been actively practicing homeopathy for the past 9 to 10 years, continuously deepening her understanding of the science. Dr. Mansi is known as ever-learning and ever-growing homeopath with a particularly deep understanding of reading. She is also widely appreciated for her daily sharing of rubrics on large Telegram, WhatsApp, and Facebook groups that thousands of homeopaths follow and benefit from her reading. रिपेयर का हो जाएगा 2 दिन में हुआ नहीं। He is the maintenance engineer of Creative Family, keeping everything organized, managing everyone, and overall keeping this machine well oiled. We are truly looking forward to learning from her today. A warm welcome to you, Dr. Mansi. The stage is yours. Please begin. I think first is Sonia. थैंक यू संगीता, थैंक यू सो मच। तो बैकग्राउंड क्या लगा है? वो माला मत लगा दो उस पे। संगीत अरे नहीं संगीता ने बनाया है वो। और नहीं लगाना भूल गई। एकदम मद्रासी स्टाइल में, टिपिकल एकदम रजनीकांत। ठीक है ठीक है ठीक है, कैरी ऑन बेटा। तो थैंक यू संगीता फॉर warm welcome, and I feel honored and blessed to share something on this special occasion of our Guruji's birthday. So first of all, happy birthday sir, एडवांस में। और एक और बात, अभी अपना सेशन शुरू होने से पहले संजय सहगल सर का भी कॉल आया था। सर ने आपको विशेष दी है, और सर बिजी है तो वो बोले कि ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ही इज बिजी समवेयर। सो थैंक यू। So this is our small gesture to pay our gratitude to sir. थैंक यू। So let us learn a simple case. छोटी छोटी केसेस ही आज हमने निकाली है क्योंकि टाइम कंस्टेंट है, रात का टाइम है। सो एक केस है, एक लेडी है, एक हस्बैंड वाइफ थे, वो आए थे। तो दोनों की केस है एक्चुअली, लेकिन आज हम क्योंकि व्हाट वुमेन वांट वाला अपना सेशन मतलब सीरीज चल रही है, तो उसमें हम वो आंटी की केस लेंगे। तो वो जो लेडी है उनकी एज है 60, अराउंड 60-62 ऐसी एज थी उनकी। उनको प्रॉब्लम थी, उनका यूरिक एसिड बढ़ गया है और उनको पेन हो रही थी, पाँव में बहुत ज्यादा पेन हो रही थी।
तो जैसे वो आए तो मैंने पूछा उनको कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाई कि ये सब हमने रिपोर्ट किए है, हाइपो मतलब वो थायराइड वगैरह, और यूरिक एसिड का रिपोर्ट किया है। सारे रिपोर्ट्स उन्होंने मुझे दिखाए। तो मैंने बोला ठीक है, ये किसने बताया था आपको? तो बोले कि हमारे घर में भी कोई डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला था कि आप जस्ट एक करा लो इन्वेस्टिगेशन, तो समझ में आएगा, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। तो मैंने पूछा उनको कि क्या दिक्कत है आपको, मतलब पेन होता है तो कैसे रहते हो आप? तो बोले कि पेन तो अभी ऐसे हो रहा है ना कि ज्यादा जब एक्सर्शन हो रहा है तभी मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग वॉक पे चले गए और बहुत ज्यादा वॉक कर लिया, और उसके बाद पेन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अभी मतलब वो कंटिन्यूअस पेन हो रहा है। तो मैंने बोला कि जैसे हम हमेशा पूछते हैं कि कैसे मतलब उनका कंसर्न जानने के लिए कि पेन के बारे में, या पेन की वजह से उनको क्या दिक्कत है। तो वो पूछा मैंने कि क्या दिक्कत आ रही है आपको, कैसे लग रहा है, या फिर आपका मूड कैसा है? तो बोले कि मूड तो अच्छा नहीं है। और मैंने बोला अच्छा नहीं मतलब कैसा है? तो बोले कि नहीं, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, और उदास लगता है, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर आप काम वगैरह कैसे करते हो, पेन के साथ आप कैसे मैनेज कर रहे हो? तो बोले कि काम कैसा है ना, करना तो पड़ता है ना, तो कर लेती हूँ मैं, मतलब थोड़ा ये करके मैं कर लेती हूँ। तो मैंने बोला मन होता है काम करने का? तो बोले कि मन तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ काम, जो भी अपना जो डेली रूटीन है वो काम मैं कर लेती हूँ। और दूसरा उनको पूछा कि अभी कौन कौन है आपके फैमिली में, कौन कौन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने के लिए, क्योंकि वो पहली बार आए थे, और शायद वो लोग शिफ्ट हुए हैं। वो लोग पुणे में रहते थे 10-15 साल से, और अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। सो बोले कि क्या अभी अभी तो हम लोग रिटायर है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ ही हम लोग रह रहे हैं। बच्चे तो अपने अपने दुनिया में चले गए, मतलब उनकी पढ़ाई हो गई, और वो अपना अपना उनका कुछ ना कुछ चल रहा है। और बस क्या है, अब हम दोनों ही है। और ये जब बात उन्होंने बोली तो वहां पे उनको ना, उनकी आंखें नम हो गई, और उन्होंने अपना फेस ऐसे उधर, मतलब मेरी से हटा दिया। जैसे वो मेरे से बात कर रही थी अच्छे से, तो उन्होंने अपना फेस भी हटा दिया। तो ये सारी, और इसके बारे में, और मतलब इतना ही केस मैंने लिया, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देती हूँ, और देखते हैं कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये ठीक तो होता है ना, यूरिक एसिड का जो भी है बढ़ा हुआ है, तो ये ठीक तो होता है ना? तो मैंने बोला हाँ ठीक होता है। तो उसके आगे उन्होंने कुछ मतलब ज्यादा कुछ नहीं पूछा कि कितना मेडिसिन लेना है, या फिर क्या करना पड़ेगा, आगे क्या है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं पूछा, खाली उतना ही पूछा कि होगा ना ठीक? तो मैंने हाँ ठीक होगा। तो फिर उन्होंने एक अच्छे से स्माइल करी, और फिर मैंने उनको मेडिसिन दी, और बोला कि आप अभी ले लो, तब तक के हम उनके हस्बैंड की भी मैं केस लेने वाली थी, तो मैंने बोला कि आप ले लो दवाई, तब तक हम देखते हैं, उनकी केस देखते हैं, और आपको मैं बाद में पूछती हूँ कि कैसा लगा। तो मैंने उनको पूछा भी नहीं, हस्बैंड की केस उनके हो गई, एक 5-10 मिनट की केस थी उनकी भी। तो उनकी केस खत्म होते होते ही उन्होंने एक डोज ले ली थी, तो वो बोली कि मुझे ना फ्रेश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और उनकी जो चेहरे पे जो उदासी थी, तो वो एकदम से स्माइल में बदल गई। तो बोली कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला कि आप और एक डोज ले लो, और बाद में जाके घर पे जाके और बाकी के डोज ले लेना, और मुझे बता देना। तो 8 दिन के बाद भी उनका कॉल आया था, क्योंकि उनके हस्बैंड को मैंने कुछ और मेडिसिन देनी थी, तो उसके लिए बोला था मैंने कि आप मुझे वापस से फॉलो अप दे देना। ठीक है, तो दिस इज द केस, डिस्कस करना है। हेलो, होप मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। यस दीपाली। हेलो, हेलो।
संगीता, आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes. बोलना है किसी को? ओके। एनालाइज करना है कुछ रुब्रिक्स या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई फीलिंग, कुछ भी। फॉस्फोरस, क्यों फॉस्फोरस, अंकुश? डिल्यूजन इंजरी रूब्रिक लिया है कुछ मैंने, डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, ओके। इंडिफरेंस से एवरीथिंग। आवाज आवाज आ रही, यस। लाइट लाइट डिजायर है, और ओके। अंडरटेकिंग थिंग्स अपोजिट प्रेजेंटेशन, काम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी करना पड़ता है। ओके। मेरे फास्फोरस आ रहा है। ओके, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। मैम इवेडिंग लुक भी है ना? नॉट एक्चुअली इविडिंग उन्होंने कब किया, जब उनको वो अपने जो क्या बोलते हैं उसको, फीलिंग्स जो है उनको वो, लेकिन वो इवेड भी नहीं किया उन्होंने। इवेडिंग लुक अगर है तो वो पूरा केस में थ्रू आउट दिखना चाहिए ना इवेडिंग। वो तो पहले इसमें ही समझ में आ जाता है इवेडिंग अगर होता तो। इवेड मतलब नजरें चुराते हैं ना। हाँ मैम। हाँ, तो नजरें चुरा नहीं रही थी वो। और किसी को बोलना है कुछ? डाउटफुल रिकवरी, लाइट डिजायर, ओके। क्या रेमेडी आप सोच रहे हैं, चंद्रेश? कैलकेरिया और फास्फोरस, ओके, गुड चॉइस। ओके। हेलो डॉक्टर मानसी। हेलो करम, बोलो। आई वाज थिंकिंग, एक तो लाइट डिजायर है, शी वांट्स टू नो, और यस। दूसरा मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड, इस एज पे भी शी इज वर्किंग, उनको पूरा काम करना, सो आई वाज थिंकिंग कैलकेरिया। मैटरनल इंस्टिंक्ट क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि इस एज पे भी वो उसको काम करना पड़ रहा है, एंड उसके हेल्प नहीं है बच्चों की। हाँ, तो उसको हम एक तो एंजाइटी ले सकते हैं, या फिर मैटरनल इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। मैटरनल ओके। इंस्टिंक्ट मतलब वो जो आप कैलकेरिया का बोल रहे हैं वो, और एक केस मैंने हम्म। बताई थी मतलब शेयर की थी अभी थोड़े दिन पहले। तो उनको क्या रहता है कि वो बहुत ज्यादा रहता है, वो जो इंस्टिंक्ट है, मैटरनल का इंस्टिंक्ट है, वो बहुत ज्यादा रहता है, एग्जैगरेटेड है ना। तो मतलब वो अपने बच्चों के लिए भी पूरा मतलब करेगी, केयर करेगी, और फिर पोती नाती जो भी है, या फिर सराउंडिंग में भी जितने बच्चे हैं उनके लिए भी उनका वो मातृत्व वाला वो जो फीलिंग रहता है, इंस्टिंक्ट रहता है, वो बहुत ज्यादा रहता है। मतलब वो दिखाई देता है कि इतना ज्यादा वो बढ़ के आ रहा है। ओके, तो थैंक यहाँ यू। पे ये ड्यूटी कर रही है, अपना काम कर रही है ना। हाँ जी। हाँ, तो वो बस अपने घर के लिए कर रही है, मतलब ज्यादा उससे आगे बढ़ के कुछ नहीं कर रही है वो, मतलब आजू बाजू के लोगों के लिए या फिर किसी को कुछ बना के देना वगैरह वो चीजें नहीं कर रही है, जो कि मदरहुड मतलब मदरली जो पर्सन होता है वो चीजें वो करते हैं, मतलब अपने बाउंड्री से आगे बियॉन्ड जाके कुछ करना, है ना। तो वो मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड होता है। तो यहाँ पे वो लेडी सिर्फ अपने घर का कर रही है, अपने मन के खिलाफ कर रही है। जो इन्होंने रुब्रिक बोला था, अंकुश ने सही बोला था, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस। उसका इंटेंशन नहीं है काम करने का, क्यों नहीं है? क्योंकि वो उदास है, वो डिप्रेशन में है लेडी, उनको मन नहीं कर रहा। उन्होंने जो केस होने के बाद में कुछ चीजें बताई कि वो जहाँ पे रहती थी पुणे में, तो वहां पे उनका एक फीमेल्स का बहुत बड़ा ग्रुप था, क्योंकि 15 साल अगर आप एक जगह पे रहते हो तो हो ही जाता है आपका जो बोलते हैं ना
जैसे घरौंदा बोलते हैं, तो वो हो जाता है, और इन लोगों का तो बहुत जल्दी हो जाता है। और वो सब मिस कर रही है वो सारी चीजें यहाँ पे आके, क्योंकि वो अकेले हो गई है बहुत ज्यादा। फीलिंग समझो, उसके पीछे की उनकी जो फीलिंग है ना, वो समझना ज्यादा जरूरी है। रुब्रिक रेमेडी तो बहुत आसान है, क्योंकि ये व्हाट वुमेन वांट वाला है। तो उसमें इस लेडी की जो वांट है, मतलब क्या है, उनको क्या चाहिए, जैसे सर बोलते हैं ना, यहाँ से सोचना शुरू कर दो कि वो क्या फील कर रही है, मतलब एम्पथाइज होना ज्यादा जरूरी है। रुब्रिक तो फिर नहीं, तो फिर वो मैकेनिकल हो जाता है, रेमेडी आ जाती है, वो नहीं चाहिए अपने को। डिस्क्लोज करते हैं। तो यस, एक्चुअली ये रुब्रिक मैंने लिया था, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस, और एक रुब्रिक सिंपल लाइट डिजायर तो है। वो तो सबने बताया कि उन्होंने उतना पूछा ना कि ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। हम्म। और उससे आगे जाके उन्होंने कुछ नहीं पूछा, तो सिंपल लाइट डिजायर मैंने लिया था। और एक और रुब्रिक है जो हम बोल सकते हैं कि कंपनी डिजायर। उनकी फीलिंग समझो ना, हम दोनों ही है, अब कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ। तो उसके बाद मतलब वो बच्चों का सोच के, और फिर वो जो अकेलापन है उसकी जो क्या बोल सकते हैं हम, पीड़ा बोल सकते हैं ना। अकेलापन किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मैंने एक रुब्रिक लिया था, सिंगल वर्ड एंग्विश जो अलोन, रुब्रिक है, एंग्विश एंग्विश अलोन अलोन। हो सकता एंग्विश अलोन। तो मतलब उसके बाद उनका एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। जैसे मैंने पूछा उनको कि क्या आपको कैसे लग रहा है, या फिर आप कौन 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 है फैमिली में, इतना बस पूछने पर ही उनके वो आंसू निकल गए। मतलब इतनी ज्यादा वो उनकी क्या बोल सकते हैं, वो पीड़ा, मतलब वो जो है जो वो उनको पिंच कर रहा है, दैट इज द फीलिंग, दैट इज। तो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि व्हाट वुमेन वांट, मतलब ये जो मैंने सर के साथ भी ये केस डिस्कस की थी, मैंने बोला सर को कि मैंने फॉस्फोरस ऐसे ऐसे दी, तो सर ने एक बात बताई थी मुझे कि ये जो है दैट इज एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, इसको बोलते हैं। मतलब कि जब बच्चे छोड़ के जाते हैं अपना क्या बोलते हैं, घर छोड़ के या फिर नेस्ट छोड़ के चले जाते हैं, तो उसका एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। एम्प्टीनेस सिंड्रोम इज अ नॉन क्लिनिकल ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ grief, loneliness and sadness experienced by parents when their children leave home। ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly मुझे ये समझ में आया, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था कि सर ने एक लाइन में वो बता दिया कि ऐसा मतलब होता है। रिटायर्ड जो लोग होते हैं, बच्चे चले जाते हैं, फिर वो रिटायर्ड माँ बाप अकेले रहते हैं, और फिर उनको वो ये फीलिंग आती है कि एम्प्टी हो गया, अपना जो घरौंदा है वो एम्प्टी हो गया, नेस्ट एम्प्टी हो गया। सो दिस वाज द केस फॉस्फोरस। और फॉलोअप तो उनका उधर ही मिला था मुझे, तो फॉलोअप भी हो गया। सो थैंक यू so much, and I would like to say thank you our beloved Guruji. Thank you for being a kind teacher, Guruji. Thank you so much, sir, and wish you again a very very happy birthday in advance. ठीक है, हो गया। Yes, sir. थैंक यू। कहाँ गई संगीता, कहाँ गई? Sangeeta. कैमरा नहीं ऑन कर पावर पैक्ट 2020 एकदम फटाफट 3 केसेस, 3 केसेस विद इन 1 आवर। लवली स्पीड गर्ल्स एंड वेरी नाइस केसेस ऑल ऑफ यू। इसी क्या थी, पद्मा की कौन सी केस थी? Carcinosin. कार्सिनोसिस। कार्सिनोसिन, हाँ कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन, ट्यूबरक्यूलिन एंड फास्फोरस। वाह, तीनों भी एकदम सॉलिड वाले ना, एकदम एकदम ब्रेड एंड बटर ऑफ होगा। वेरी नाइस, थैंक यू। या चलो खत्म करते हैं।
यस, किसी को सर को विश करना है, यू कैन गो अहेड अरे come on. Thank you very much in advance to all of इन you. एडवांस. Happy birthday, sir. Happy birthday in Happy advance. birthday, sir. Thank you. Happy birthday, sir. Happy birthday Thank you. Thank in you. advance. birthday, sir. Thank you. Happy Keep Happy birthday, birthday, sir. sir. Thank you. Happy birthday, sir. Thank you. So it's very embarrassing, you know. Sometimes when it is, I had told this girl not to keep it public. I said we'll celebrate it. Hello, doctor. Hello, doctor. Hello, hello, hello. Thank you. Hello, sir. Wish you a very, very, very happy returns of the day. Thank you. Thank you. Thank you. So let me get more happy birthdays. Thank you, Lalita. So sweet of you. Thank you. Thank you. I had asked these girls to keep it very private tomorrow. In लोग सुनते नहीं हैं. You'll get good messages tomorrow. सभी आप प्राइवेट पर्सन है ही नहीं, कैसे रखेंगे सर? Thank you, यार. हैप्पी बर्थडे सर. Thanक यू. So sweet. एक पर्सन होने के बाद आपका बर्थडे प्राइवेट रह सकता है क्या सर? इधर थोड़ा लो प्रोफाइल रमजान भी चल रहा है थोड़ा सा. I keep my birthday very private many times. Very close people. है ना? मेरे जो 100 अरे लोग पण चावडीवर बोंबलायला पाटलाची 100 परवानगी लोग कशाला असतात तरी पाहिजे? प्रायव्हेट बोलत तरी it becomes 100 people but then still you have to make it. It goes on YouTube now. It's gonna be done every year. All right. चावडीवर Thank you. बोंबलायला Yeah. पाटलाची परवानगी कशाला पाहिजे हो सर? विठ्ठला विठ्ठला. Yes, निशु. प्रणीता काय बेटा? प्रणीता तो देखो स्कूल के ड्रेस में बैठी ब्लैक एंड व्हाइट माशाल्लाह. Yeah, over to Pranita. ऐसा लग रहा है उर्दू स्कूल की कोई तो स्टूडेंट है. गुरुजी का बर्थडे है तो या ऐसा स्टूडेंट. लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल है ना. एग्जैक्टली. जीसस लव्स यू. हो गया. ओके प्रणीता, Sir? नो पोएट्री है. Yeah, I want to speak. ओके बेटा. Yeah. Sure. Good evening. On behalf of Team PHF, I take this opportunity to express vote of thanks. Tonight's webinar was special. We gathered here not only just to learn, but to celebrate our beloved Guruji Dr. Liaquat Namole sir's birthday. Sir, your depth of knowledge and the unique way in which you simplify even the most complex concepts has always been something we all admire. Personally, I feel very fortunate and grateful to have learned under your guidance. Whatever little I am today, you have played a very important role in shaping me, not only professionally, but also as an individual. Moving ahead, I would also like to extend my sincere gratitude to my another mentor, Dr. Manisha Soni ma'am, for wonderful introduction and welcoming the first speaker. Thank you, ma'am, for opening the evening so warmly. I would also like to express my heartfelt thanks to all three speakers, Dr. Padma Shri Shende for sharing a case of carcinosin in young girl and catching the exacting 2 rubric. Dr. Manjari Kahali for courageously prescribing tuberculinum. Dr. Mansi Patil for a new learning of emptiness syndrome of phosphorus. Thank you all three of you for sharing your valuable time and insights with us. In addition, I would like to thank Dr. Sangeeta for warmly welcoming today's speakers. I would also like to specially thank Dr. Mansi Patil for organizing this event single-handedly. Without her, it would have been impossible. My sincere appreciation also goes to entire team PHF. And finally, I would like to thank all the participants for taking out their valuable time to join us today and being part of this wonderful evening. Once again, wishing our respected Guruji a very happy birthday and many more years of good health, happiness, and a wonderful year ahead. Thank you. Thank you, everyone.
Thank you. Thank you. Thank you, कितना sir. अच्छा Thank you, बोल दिया ना ma'am. विक्टोरिया, निशु। हेलो हेलो God bless you. हाँ सागे बोल। चिरकुरमा खाने कब आऊं? आजा आजा, ईद शायद सैटरडे को है। आजा सैटरडे को आजा। अरे अपनी रोज ईद है। आजा आजा कभी भी। आज तेरी तुम्हारा बर्थडे तो आज ईद आज ही है। कल है रे बर्थडे, कल तेरा को है। हाँ? तेरा तेरा तेरा। हाँ तो ठीक है ना, जब आजा पीछे तो बोला जब बर्थडे तब ईद। आजा आजा कभी भी आ, तेरे को क्या ऐसा है? मैं नहीं भी रहा तो तेरा घर है, तेरे को क्या? आजा। हाँ? Thank you. So nice. I'm really, really very grateful. I'm every time you all celebrate, I'm touched actually. Every gesture of your love, uh, gratitude. Okay, Sir, love, sir, warmth, and sir, Yes, sir. belonging makes me. It builds something in me. It heals me truly. I feel life worth living every time I share something, and every time I get the reciprocation, and this is so much of love, of course. I don't know, yeah. I'm not used to being celebrated so much. I had written one poem today, Nishu, if you allow me. It's written at 5 today. मैं टूटता हूं तो मुस्कुराता हूं, जुड़ता हूं तो आंसू बहाता हूं। मैं टूटता हूं तो मुस्कुराता हूं, जुड़ता हूं तो आंसू बहाता हूं। वो समझते हैं पत्थर दिल हूं मैं खुद पर ही सख्ती आजमाता हूं। ये मेरा अपना है, मुझ तक ही रहे, इस दर्द को मैं दिल में छुपाता हूँ। तुमसे अब बात हो नहीं पाती, तन्हाई में खुद से बतियाता हूँ। लोग जिसे बेखुदी कहते हैं, मैं उसमें सदियां बिताता हूँ। और कौन समझेगा हाले दिल मेरा, मैं वो बात अधूरी ही बताता हूँ। और नाचीज मेरा तखल्लुस है, तखल्लुस माने पेन नेम। ये राज दिल है नाचीज का, ये राज दिल है नाचीज का, मैं जख्मों से रिश्ता निभाता हूँ। Thank you very much. Thank you. I'm really indebted. I love you, and lots and lots of blessings, prayers, and gratitude of all. Yeah. Nishu, my beloved sister, darling, my child, Pranita, Mansi, Angu, Manju, Paddy, Priyanka, Nasir, Sagar, Mani. Oh, the list is never ending. दीपा, जिसके वजह से मैंने सेमिनार्स फिर से शुरू किए, है ना? बस ना सर। सभी बच्चे, ललिता, करम, बहुत है। The list is huge, माशाल्लाह. I feel blessed. I feel like Natram Kaab, visual body enlarged. Thank you. Really, thank you so much. Very few Yes, sir. words. Yeah. Nish. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. God bless. Thank you, sir. See you all. Bye bye.